आज हम डिस्कस करेंगे टेलर्स थ्योरम का इस लेक्चर में। टेलर्स थ्योरम, तो पहले स्टेटमेंट देखते हैं। टेलर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? लेट एफ जेड बी एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक है इनसाइड ए सर्कल mod of z minus a is equal to rho 1. A is the center, rho 1 is the radius, and zeta be any point inside C. So then f of zeta is equal to fa plus zeta minus a, f dash a plus zeta minus a the whole square upon factorial 2 f double dash a plus and so on zeta minus a raised to the power n upon factorial n f n a plus and so on. Now we shall prove this theorem. So we consider A is the center, C1 is the circle, and inside circle we consider as C2. So this is C2 circle. Now A is the center and zeta be any point inside the circle C, and the radius of the circle C2 and the radius of the circle C1. Radius of circle C1 we denoted as rho 1, radius of circle C2 denoted as rho 2, and the distance between A and zeta is equal to rho 3. Okay, so this is the symbol of rho, RHO. So now so a point which lie inside the circle C. So here we write down as, since function fz is analytic given by mod of z minus a is equal to rho 1. ओके, सो रो 1 रेडियस। तो अब जब इसमें सर्कल रो 1 रेडियस के लिए एनालिटिक है, तो इनसाइड तो सारा पड़ रहा है, जो C2 सर्कल है उसके लिए भी फंक्शन क्लियरली एनालिटिक होगा। सो इट इज also analytic on and inside a circle C2। so on and inside a circle C2। अब C2 के लिए जो हमने लिया है कि जो रेडियस है C2 की वो लेस देन C1 है, तो C2 के लिए रेडियस हम अज्यूम कर रहे हैं कि mod of z minus a equal to rho 2। rho 2 is the radius of the circle C2, so we can say that where rho 2 is less than rho 1, rho 2 is less than rho 1. So now, by using the Cauchy integral formula, so by using Cauchy integral formula, Cauchy integral formula, we write down as f of zeta is equal to 1 upon 2 pi I integration along a circle C2। अब C2 के लिए C2, so we write down this as fz into dz upon z minus zeta।
नाउ दिस वी कैन राइट डाउन एज जो जेड माइनस जीटा है ना हमारा, इस जेड माइनस जीटा वी कैन राइट डाउन एज जेड माइनस ए और माइनस जीटा माइनस ए, इसको इस फॉर्म में लिख दिया हमने। सो वी कैन राइट डाउन दिस एज 1/2 पाई आई integration along the circle C2 fz into dz upon z minus a और माइनस जीटा माइनस ए। तो z माइनस ए माइनस जीटा माइनस ए एफ ऑफ जीटा। नाउ we write down this as this equal to 1/2 pi iota integration along a curve C2, so fz into dz upon, so here we can take z minus a as common. So when we take z minus a as common, so this we can write down as 1 minus जीटा माइनस ए अपॉन जेड माइनस ए, जीटा माइनस ए अपॉन जेड माइनस ए। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम अंडरस्टैंड करेंगे। अब कॉन्सेप्ट क्या है, अभी मेनली मेजरली हमारा ये टर्म है, अब इस टर्म को हमें किस तरीके से लिखना है, केवल यही मेजरली कॉन्सेप्ट रहेगा हमारे इसके। अब जैसे ये है हमारा, इसको हमने अज्यूम कर दिया अल्फा, अल्फा हमने ले लिया जीटा माइनस ए अपॉन जेड माइनस ए। तो बेसिकली ये हमारा क्या बन गया, 1 माइनस अल्फा बन गया। और 1 माइनस अल्फा है और ये अपॉन में है, तो अपॉन में है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/1 माइनस अल्फा। ये आप कह सकते हो, इसे रफ वर्क कर सकते हैं। तो 1/1 माइनस अल्फा है, तो 1/1 माइनस अल्फा। तो जब इसको सिंपलीफाई करेंगे हम, जैसे इसको ये कंप्लीट है हमारा, ये 1 माइनस अल्फा हो गया, वन अपॉन, यहाँ से 1/1 माइनस अल्फा। तो जब 1 माइनस अल्फा से डिवाइड करेंगे हम वन को, तो फर्स्ट जो हमारा आएगा क्या आएगा, वन टाइम हमने डिवाइड किया तो ये आ जाएगा हमारा जैसे 1 माइनस अल्फा, ऑन साइन चेंज, ये माइनस और ये प्लस, तो 1 to 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा अल्फा। नाउ वी divide by alpha times. So this can be written as alpha minus alpha square. Again, we do the sign change. So alpha to alpha cancelled. So alpha to alpha cancelled. So next our term is alpha square. So now we divide by alpha square time. So this can be written as alpha square minus alpha cube. So this is the plus sign minus cancelled. तो ऐसे ही हम ऐसे डिवाइड करते जाएंगे, तो जो लास्ट टर्म रह जाएगा हमारा, लास्ट टर्म, तो वो क्या रह जाएगा, अल्फा रेज टू द पावर एन रह जाएगा। और ये जो जो ये टर्म्स आएंगे वो कहाँ तक चलते चले जाएंगे हमारे, हम लिख रहे हैं उसे अल्फा रेज टू द पावर n-1 तक। तो अल्फा रेज टू द पावर n-1। तो जब अल्फा रेज टू द पावर n-1 आ जाएगा, तो जो टर्म हम आगे जो मेंशन करेंगे, सो दिस कैन बी रिटन एज, जो वैल्यू होगी हमारी 1, 1 कैन बी रिटन एज 1 माइनस अल्फा और इंटू 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब और प्लस एंड सो ऑन, और प्लस अल्फा रेज टू द पावर n-1। और ये जो रिमाइंडर रह जाएगा वो प्लस ऐड कर देंगे हम, प्लस अल्फा रेज टू द पावर n। तो अब हम यहाँ कह सकते हैं कि जो वैल्यू आएगी हमारी 1/1 माइनस अल्फा की, सो द वैल्यू ऑफ 1/1 माइनस अल्फा विल इक्वल टू 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा रेज टू द पावर 4 और प्लस एंड सो ऑन, अल्फा रेज टू द पावर n-1 और प्लस अल्फा रेज टू द पावर n/1 माइनस अल्फा। तो ये ध्यान रखना होगा आपको, हम इस टर्म को यूज करेंगे जब इसको एक्सपेंड करेंगे, जब डिवाइड करेंगे। तो अब वापस पहुंचते हैं हम उसी टर्म पर। अब केवल जनरल टर्म में चेंज है कि अल्फा रेज टू पावर n/1 माइनस अल्फा। नाउ वी विल बैक टू द स्टेप। अब इस स्टेप पे हम वापस आएंगे। सो नाउ we write down this as 1/2 pi iota integration along curve C2
So we write down as fz dz upon z minus a, or this term we can write on 1 upon 1 minus zeta minus a upon z minus a. नाउ अब इस टर्म को एक्सपेंड करना, ये हमारा क्या है, अल्फा, इसको वी अज्यूम दैट अल्फा, और जब एक्सपेंड करेंगे सो दिस कैन बी रिटन एज दिस इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन अलोंग कर्व C2। सो यहाँ से हमने क्या किया, 1 अपॉन जेड माइनस ए, और एक्सपेंड करेंगे इसे, तो पहला टर्म क्या है, 1 1 प्लस अल्फा, तो वी राइट डाउन एज 1 प्लस अल्फा, अल्फा मीन्स जीटा माइनस ए अपॉन जेड माइनस ए, 1 प्लस अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं जीटा माइनस ए अपॉन जेड माइनस ए टू द होल स्क्वायर, प्लस नेक्स्ट टर्म आएगा, और प्लस एन माइनस वन आ जाएगा, जीटा माइनस ए अपॉन जेड माइनस ए रेज टू द पावर एन माइनस वन, और जो लास्ट टर्म आएगा क्या आएगा, जीटा माइनस ए अपॉन जेड माइनस ए रेज टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो 1 माइनस और अल्फा क्या है, जीटा माइनस ए अपॉन जेड माइनस ए। नाउ वी राइट डाउन हियर एज एफ जेड इंटू डी जेड, तो एफ जेड इंटू डी जेड। अब इसको सिंप्लीफाई करके टर्म बाई टर्म्स वी कैन राइट डाउन। अब इसको हमने लिख सकते हैं दिस इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन अलोंग ए कर्व C2। तो फर्स्ट टर्म क्या हमारा 1 है, 1 है तो 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए, फर्स्ट टर्म आ जाएगा, प्लस अब सेकेंड टर्म, तो यहाँ पे जो जीटा माइनस ए है वो तो कांस्टेंट है, तो जीटा माइनस ए को हम आउटसाइड ले लेंगे इंटीग्रल से, तो इसको लिख सकते हैं हम जीटा माइनस ए अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन अलोंग कर्व C2, और ये क्या आ जाएगा, एफ जेड इंटू डी जेड अपॉन जेड माइनस ये है और जेड माइनस ये है, तो ये हो जाएगा जेड माइनस ए टू द होल स्क्वायर, प्लस नेक्स्ट टर्म आएगा वो क्या आएगा, जीटा माइनस ए टू द होल स्क्वायर अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन C2, और ये हो जाएगा एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए रेज टू द पावर होल क्यूब, और प्लस एंड सो ऑन। नाउ वी राइट डाउन n minus 1th term, so zeta minus a raised to the power n minus 1 upon 2 pi iota along the curve C2, or this can be written as f z dz upon z minus a, यहाँ पे पावर है n minus 1 है, एक z minus a बाहर चल रहा है, तो ये पावर क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। नाउ वी राइट डाउन द लास्ट टर्म, अब लास्ट टर्म क्या हो जाएगा इसका, प्लस अब ये है जीटा माइनस ए रेज टू द पावर एन अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन अलोंग कर्व C2, और ये हो जाएगा एफ जेड इंटू डी जेड अपॉन अपॉन अब देखिए यहाँ से ये है जेड माइनस ए रेज टू द पावर एन, जेड माइनस ए रेज टू द पावर एन, तो ये लिख दिया हमने जेड माइनस ए रेज टू द पावर एन। और जब इस टर्म को जब सिंप्लीफाई करेंगे हम, कौन से टर्म को, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको जब सिंप्लीफाई करने पे हमें क्या मिलेगा, ये हम लिख सकते हैं इसको जेड माइनस ए माइनस जीटा और माइनस माइनस प्लस ए अपॉन जेड माइनस ए, तो यहाँ ए से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा जेड माइनस जीटा अपॉन जेड माइनस ए, तो जो जेड माइनस ए होगा वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, और जो बाहर आउटसाइड में जो जेड माइनस ए चल रहा है उससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये जेड माइनस ए जब न्यूमरेटर में जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो जो जेड माइनस जीटा है वो डिनोमिनेटर में रह जाएगा, तो ये रहेगा जेड माइनस जीटा। ओके, क्योंकि ये पावर एन थी हमने एज इट इज यहाँ लिख दी, जब इसको सिंपलीफाई करके लिखा तो जेड माइनस ए न्यूमरेटर में जाएगा, और ये जो डिनोमिनेटर में जेड माइनस ए चल रहा है उसी को कैंसिल हो जाएगा। नाउ दिस इक्वल टू वी राइट डाउन एज
सो बाय यूजिंग द कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला, अब कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला जब यूज करेंगे तो ये किसकी वैल्यू होगी? दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू एफ ए, दिस वैल्यू विल इक्वल टू एफ ए। ये वैल्यू इक्वल होगी एफ ए की, प्लस सेकंड जीटा माइनस ए, ये किसके इक्वल होगी? एफ डैश ए की इक्वल होगी बाय यूजिंग कॉस इंटीग्रल फॉर्मूला। प्लस नेक्स्ट जीटा माइनस ए टू द होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, और ये होगी इक्वल टू एफ डबल डैश ए, प्लस एंड सो ऑन। और प्लस जीटा माइनस ए रेज टू द पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल, और दिस विल बी इक्वल टू एफ एन माइनस वन इंटू ए, और प्लस पी एन। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर वन। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर वन। अब इसको हमने कंसिडर कर लिया दैट दिस इज द वैल्यू ऑफ पी एन, ये है हमारा पी एन इक्वल टू पी एन। नाउ we write down here where pn is equal to, where pn is equal to zeta minus a raised to the power n upon 2 pi I integration along the curve c2 fz dz upon z minus a raised to the power n z minus zeta. Now we take its modulus, so modulus of pn which equal to modulus of zeta minus a raised to the power n upon 2 pi I integration fz into dz upon z minus a raised to the power n or z minus zeta. Now, so this will be less than equal to, जब हम सेपरेट मॉडुलस लेंगे तो प्रॉपर्टी यूज कर देंगे, z माइनस ए रेज टू द पावर n अपॉन 2 पाई आई का मॉडुलस पाई, और इंटीग्रेशन मॉडुलस ऑफ एफ जेड मॉडुलस ऑफ डी जेड अपॉन जेड माइनस ए रेज टू द पावर n और जेड माइनस जीटा मॉडुलस ऑफ। नाउ अब हमने थ्योरम पढ़ी है कि जो फंक्शन एनालिटिक है और एफ जेड लेस देन इक्वल टू किसके होता है? एम के होता है, तो वो हमको यहाँ यूज कर लेंगे। तो नाउ दिस लेस देन इक्वल टू, अब जो जीटा माइनस ए है, मॉड ऑफ जीटा माइनस ए, अब मॉड ऑफ जीटा माइनस ए, अब देखिए जीटा हमने एक कोई पॉइंट लिया है, तो मॉड ऑफ जीटा माइनस ए, तो उसकी जो रेडियस है वो क्या है? रो थ्री है, तो दिस इक्वल टू रो थ्री, तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? रो थ्री। तो ये लिख सकते हैं हम रो थ्री रेज टू द पावर एन, मॉड ऑफ जीटा माइनस ए। So we write down mod of zeta minus a is equal to rho 3. तो rho 3 raised to the power n upon 2 pi और into m. So f z के प्लेस पे हमने लिख दिया m, और यहाँ पर क्या है? z माइनस ए, z माइनस ए क्या है हमारा? z माइनस ए इज द सर्कल, और इनसाइड सर्कल जो z माइनस ए लिया है वो क्या लिया है? रो टू लिया है। z माइनस ए क्योंकि सी टू के लिए लेके चल रहा है, तो z माइनस ए इज इक्वल टू रो टू, तो ये भी हमारा कांस्टेंट हो गया, z माइनस ए रो टू हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? रो टू। तो यहाँ लिख सकते हैं रो टू रेज टू द पावर एन, रो टू रेज टू द पावर एन। अब इंटीग्रेशन में क्या रह गया हमारा? अलोंग सी टू, तो ये रह गया मॉड ऑफ डी जेड अपॉन जेड माइनस जीटा, तो जेड माइनस जीटा। नाउ दिस कैन बी रिटन एज रो थ्री रेज टू द पावर एन और अपॉन रो टू रेज टू द पावर एन, तो इसको लिख सकते हैं रो थ्री अपॉन रो टू रेज टू द पावर एन और एम अपॉन टू पाई, एम अपॉन टू पाई इंटीग्रेशन सी टू मॉड ऑफ डी जेड अपॉन इस जेड माइनस जीटा। अब जेड माइनस जीटा है, उसको वापस उसी फॉर्म में ले जाएंगे कि जेड माइनस ए और माइनस जीटा माइनस ए, तो इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। और जब अलग अलग लिखेंगे तो दिस कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ जेड माइनस ए और माइनस
mod of zeta minus a. So now this less than equal to, so we write down as m upon 2 pi rho 3 upon rho 2 raised to the power n. Now अब देखिए मॉड ऑफ जेड माइनस ए हमने क्या लिखा है, रो टू। तो जेड माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो टू ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा। और जब डिफरेंशिएट करेंगे इसको डीजेड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रो टू आयोटा ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा और डी थीटा। और थीटा क्या हो जाएगा, थीटा विल बी 0 टू 2 पाई। सो थीटा विल बी 0 टू 2 पाई। सो नाउ व्हेन वी इंटीग्रेट दिस, तो जब इंटीग्रेट करेंगे इसको तो मॉड ऑफ जेड माइनस ए और जीटा माइनस ए, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई। और ये क्या आ जाएगा, जब इसका मॉडुलस लेंगे डीजेड का, जब डीजेड का मॉडुलस लेंगे, मॉडुलस ऑफ डीजेड, तो ये हो जाएगा रो टू और इनटू क्या हो जाएगा, डी थीटा। तो ये इक्वल टू आ जाएगा रो टू इंटू डी थीटा अपॉन, और जेड माइनस ए क्या है हमारा, रो टू है। और जीटा माइनस ए क्या है हमारा, रो थ्री है। जीटा माइनस ए इक्वल टू रो थ्री है। So now we write down this as less than equal to m upon 2 pi rho 3 upon rho 2 raised to the power n। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, रो टू अपॉन रो टू माइनस रो थ्री, और डी थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा, और लिमिट्स हो जाएंगी हमारी 0 टू 2 पाई। So this we can write down less than equal to m upon 2 pi रो थ्री अपॉन रो टू रेज टू द पावर n, और रो टू अपॉन रो टू माइनस रो थ्री, और ये क्या हो जाएगा, 2 पाई। और 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। नाउ वी राइट डाउन दिस लेस देन इक्वल टू m रो टू अपॉन रो टू माइनस रो थ्री, और हियर इज रो थ्री अपॉन रो टू रेज टू द पावर n। नाउ व्हेन n इज लार्ज, when n is large means n tends to, हम infinity जाएंगे, so then this term will tends to 0। so this will tends to 0 because we say that रो 3 जो upon रो 2 है वो which is less than 1 है, which is less than 1। so now by using equation 1, तो जो pn होगा हमारा, जो pn टर्म है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। so this tends to 0, so this tends to 0। so by equation वन, तो इक्वेशन वन से हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ जीटा इक्वल टू एफ ए प्लस जीटा माइनस ए एफ डैश ए प्लस जीटा माइनस ए द होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए, और प्लस एंड सो ऑन। तो दिस इज द टेलर्स थ्योरम, दिस इज द टेलर्स थ्योरम। इस फॉर्म में लिख देते हैं इसको, या आपको समीशन में लिखना है तो समीशन यू कैन राइट डाउन द समीशन, समीशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n और जीटा माइनस a रेज टू द पावर n, where a n we write down is f n a upon factorial n। So you can put into the summation form। So hope you understand the proof of Taylor's theorem।